Good morning, students. This session is for class 8 science. Students, in last sessions we have completed theoretical portion of chapter 6 NCERT, that is combustion and flame. Students, in this session we are going to complete the solutions of the questions given in exercise of this chapter. So let us start with the question number 1. You can see the question number 1 on your screen. This is list conditions under which combustion take place. Okay, so students, try to take your copy and pen. I will give you some time for each questions, and you will have to try to write the answer of these questions by yourself. Okay, so take your copy and pen and let's start with us. So you can see the solution on the screen, and the solution of the question number 1 is combustion can be defined as process of reaction of a substance with oxygen. There are certain conditions required for combustion to take place, and they are: first one is presence of a fuel, second presence of air or oxygen. Air, because air is mixture of different gases like oxygen, nitrogen, etc. Third one is ignition temperature. Ignition temperature is the minimum temperature at which substance catches fire. So these three are the most necessary conditions for the combustion take place. Then concept of insight: below ignition temperature combustion cannot take place. So this is the solution of this question. Let me repeat these things. Question is list conditions under which combustion can take place. Okay, so according to the question you need only the conditions, but to make you clear, the definition of combustion is given here, and after that the conditions for combustion is given here, and then what is ignition temperature, that is also explained. So the solution, you can see the definition of combustion. Combustion can be defined as process of reaction of substance with oxygen. So it is a process of reaction of substance with oxygen. So substance plus oxygen. There are certain conditions required for combustion to take place, and they are presence of fuel. So it is necessary that there must be a fuel. Second one is air. Since air is the mixture of different type of gases, so there is oxygen also in air. So you can say the presence of air or presence of oxygen. And third one is heat, or you can say ignition temperature. And ignition temperature is the minimum temperature at which substance catches fire. And you know that below ignition temperature combustion cannot take place. So this is the answer of question number 1. I hope you understand. Let's see the second question. So second question is fill in the blanks. So 4 A, B, C, D are given here, and you can try to fill these by yourself. Let us see. First one is means A, burning of wood and coal causes of air. Now I am damn sure you know. So the first one is pollution. Burning of wood and coal causes pollution of air. Now what is pollution? So you can see about pollution here. Burning of wood and coal causes pollution of air due to release of fine particles which are toxic for the environment and our health. Would release a high amount of harmful gases which can causes respiratory diseases. So this is the meaning of the pollution. Okay, let me repeat. Burning of wood and coal causes pollution of air due to release of fine particles which are toxic for environment and our health.
would release a high amount of harmful gases which can causes respiratory disease। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप वुड और कोल को बर्न करते हैं तो ये एयर को पोल्यूट करते हैं। कैसे? ये रिलीज़ करते हैं फाइन पार्टिकल्स जो कि टॉक्सिक जहरीले होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। और वुड रिलीज़ अ हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, यहाँ पे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं जब कंप्लीट कंबसन होता है। ये दोनों ही गैसेस हमारे लिए बहुत ही, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बी में आते हैं। बी को देखिए यहाँ पे केरोसिन। केरोसिन इज़ एन ईजिली अवेलेबल लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। तो यहाँ पे केरोसिन जो है ये एक फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बी क्या है, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़। तो यहाँ पे कौन कौन से लिक्विड फ्यूल को होम घर में यूज़ करते हैं आप? तो यहाँ पे आंसर है केरोसिन ऑयल। ठीक है, केरोसिन जो कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है। केरोसिन इज़ एन ईजिली अवेलेबल लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम। तो ये केरोसिन जो है ये ईजिली अवेलेबल लिक्विड फ्यूल है जिसको घर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही है। थर्ड सी देखिए, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर। सो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। ओके, तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट और मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। In order to a fuel to catch fire, it must be heated to its ignition temperature before it starts burning। तो यहाँ पे अगर किसी भी सब्सटेंस जिसको बर्न करना है उसको पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आपको हीट करना होगा, तभी वो बर्न कर सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई। तो यहाँ पे अगर ऑयल से फायर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम लोग वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सी और डी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। वाई, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन आपको अपने से लिख सकते हैं या फिर अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन, वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल और पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल। Water is heavier than oil and will therefore sink to bottom while the coal continue to burn on the top। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। सो जैसे ही वाटर का यूज़ करते हैं फायर कंट्रोल करने के लिए, ऑयल जो होता है वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है और बर्न करने लगता है। इस तरीके से उसको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इस केस में वाटर यूज़ नहीं करते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे सीएनजी का यूज़ ऑटोमोबाइल में करके हम लोग जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन है, द अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनजी इज मच लेस इन कंपैरिजन एज पेट्रोल एंड अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड आल्सो लेस। हेंस सीएनजी इज comparatively a cleaner fuel than petrol। Using CNG in automobiles has therefore helped in reducing pollution in cities। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सोल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय सीएनजी इज मच लेस। सीएनजी जो होता है वो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं बहुत कम रिलीज़ करता है और हार्मफुल गैसेस भी ये बहुत कम रिलीज़ करता है। और इस तरीके से सीएनजी का हम लोग यूज़ करके जो अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं, मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही रीज़न है। यहाँ पे एक बार फिर से आप आंसर यहाँ पे आंसर देख सकते हैं।
आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स produced by CNG is much less as compared to the petrol, and amount of harmful gases produced is also less. Okay, hence CNG is comparatively a cleaner fuel than petrol. Using CNG in automobiles has therefore help in reducing pollution in cities. तो यहाँ पे ये आंसर है। कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। सिंपल आंसर है, सीएनजी जो है ये क्या करते हैं, लेस अमाउंट में अनबर्न कार्बन पार्टिकल और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो फ्यूल हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। इस तरीके से सीएनजी का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लेस पोल्यूटेंट जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट लेस पोल्यूशन होगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसका मतलब वो मोर क्लीनर रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज ए फ्यूल। तो यहाँ पे मैं एलपीजी को वुड के साथ कंपेयर करना है। ये दोनों ही फ्यूल हैं जिनको हम घर पे यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी इनको अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बारे में आप जानते हैं, दोनों का यूज़ हम लोगों ने घर पे किया हुआ है। तो यहाँ पे एलपीजी का देखते हैं। एलपीजी इज अ क्लीन फ्यूल, leaves no residue and produces very less amount of harmful gases। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलपीजी एक बहुत अच्छा फ्यूल है और ये जब बर्न होता है तो ये रेसिड्यू और हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, या आप बोल सकते हैं बहुत ही कम करता है। अगर हम वुड की बात करें तो देखते हैं, रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, हाई अमाउंट में हार्मफुल गैसेज इससे रिलीज होती हैं, विच कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। ऑल्सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज दस लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। और क्योंकि जो आप वुड जो है ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ट्रीज से, और ट्रीज़ को लगातार कट करने से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है वुड यूज़ करने के। एक तो वुड यूज़ करके आप हाई पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, दूसरा डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं। तो ये एलपीजी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है एट द प्लेस ऑफ वुड। ओके, सेकेंड, अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो देखते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी 55,000 किलो जूल पर केजी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 केजी एलपीजी अगर आप बर्न करते हैं, इसका कंप्लीट कंबसन कराते हैं, तो मिलता है 55,000 किलो जूल एनर्जी, हीट एनर्जी। जबकि अगर आप 1 केजी वुड बर्न करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू वुड की जो है वो है 17,000 टू 20,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 केजी वुड बर्न करेगा तो आपको 17,000 टू 20,000 किलो जूल पर केजी, मतलब किलो जूल हीट मिलेगी। तो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है वुड की वो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो एलपीजी है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी देता है और पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता। जबकि यहाँ पे वुड पोल्यूशन करता है, डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है और यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको रीजंस देने हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है और उसको कंप्लीट करते चलते हैं। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई एम continuously saying you that take your pen and copy and try to write the answers by yourself within the time limit. Okay, so let's see the first. Water is not used to control fire involving electrical equipment. So this point has been discussed many times in our
videos, so you can take help from that, or you can see the answer given here. The solution of first question is, water is a good conductor of electricity. If it is used for controlling a fire involving electrical equipment, then person doing the fire might get an electric shock. Also water can damage the electrical equipment. Okay, सो आई होप कि आपको आंसर समझ में आया. फिर से एक बार आपको बता देते हैं. देखिए, वाटर क्या है, वाटर जो है होता है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, अब अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगा है, मतलब कि उसने फायर कैच कर लिया है, तो क्या करेंगे कि अगर आप वाटर यूज़ करते हैं तो जो भी पर्सन वाटर का यूज़ कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है, क्योंकि उस वाटर के अंदर से करंट पास कर सकती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है. दूसरा, ये वाटर जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज भी कर सकता है. तो इस तरीके से वाटर का हमें यूज़ उस कंडीशन में नहीं करना है, तो यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं. सेकेंड है, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको पहले से ही पता है. LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल बिकॉज बीइंग अ गैसियस फ्यूल it does not produce smoke and there are negligible unburned carbon particles. तो यहाँ पे देख सकते हैं LPG जो है वो बहुत ही अच्छा फ्यूल है, गैसियस स्टेट में होता है, ये कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है और कार्बन अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता है, और जिससे कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पोल्यूशन नहीं होता है. इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई है, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे. तो ये सब बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ये इसको लिखना आपने बार बार इसको पढ़ा है. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. सी, पेपर बाई इटसेल्फ कैचेज फायर इजिली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पीस डज नॉट. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर पीस होता है जो कि इजीली फायर कैच कर लेता है, मतलब इजीली बर्न करने लगता है, बट अगर उसी को रैप कर दिया जाए एल्युमिनियम पाइप से तो नहीं बर्न करता है. तो इसका आंसर आपको बताना है. तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कौन से टॉपिक पे बेस्ड है, तो इसका आंसर ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हैं सी में. A piece of paper wrapped around aluminium pipe does not catch fire easily. This is because aluminium being a metal is good conductor of heat. तो यहाँ आप देख सकते हैं एल्युमिनियम एक मेटल होता है जो कि हीट का गुड कंडक्टर है. जब वहाँ पे जब हीट उस सिस्टम को मिलती है, यहाँ पे देख सकते हैं देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेपर टू मेटल. तो जब पेपर को हम बर्न करने की कोशिश करते हैं तो जो हीट होती है वो पेपर से मेटल को ट्रांसफ़र कर दी जाती है. इवेंचुअली पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और इस तरीके से पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है और पेपर बर्न नहीं करता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आंसर. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6. मेक लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये टॉपिक आपको दिया गया है, बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, आप बुक से चाहें तो वहाँ से भी इसको आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, एक बार यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं. मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कैंडल है जिसका एक फ्लेम है. हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पे, ये हॉटेस्ट पार्ट है जो ब्लू कलर का दिखाई देता है. ठीक है, जहाँ पे एकदम कंप्लीट कंबसन होता है, और ये सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे होता है. सेकेंड होता है मॉडरेटली हॉट, जो येलो कलर का दिखता है, मिडिल जोन होता है. ठीक है, मिडिल जोन होता है. ठीक है, और थर्ड है लीस्ट हॉट या फिर इनर मोस्ट जोन होता है. ये है कंप्लीट कैंडल आपका. तो ये कैंडल के डिफरेंट पार्ट्स और वहाँ पे जोन दिखाई दे रहा है. द लीस्ट हॉट पार्ट इन अ फ्लेम इज़ इन द इनर मोस्ट जोन. तो यहाँ पे सबसे कम जो हॉट
पार्ट है वो इनर मोस्ट जोन में है। द मॉडरेट हॉट पार्ट इन अ फ्लेम इज़ इन द मिडिल जोन, यहाँ पे मिडिल जोन में मॉडरेट हॉट पार्ट है। और द हाईएस्ट और हॉटेस्ट पार्ट इन फ्लेम इज इन इट्स आउटर जोन, तो यहाँ पे आउटर जोन है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ये। ठीक है, ये आपका कैंडल फ्लेम का स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी डाउट हो आप फिर से डिस्कस कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में भी आप बुक से कैंडल फ्लेम का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है कैंडल। द लीस्ट हॉट पार्ट इन अ फ्लेम इज इन इट्स इनर मोस्ट जोन, द मॉडरेट हॉट पार्ट इज फ्लेम इन इट्स मिडिल जोन एंड द हाईएस्ट हॉटेस्ट पार्ट इन फ्लेम इज आउटर जोन। तो ये आंसर है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, तो ये आपका यूनिट है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो होती है वो किलो जूल पर केजी में ही यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। इट एक्सटिंग्विशेस फायर इन 2 वेज। तो यहाँ पे आपको पता है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है अपने सेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन कम्बस्टिबल गैस, ये एक कम्बस्टिबल गैस नहीं है, ये हेल्प नहीं करती कम्बसन में। एंड आल्सो नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बसन, देख सकते हैं ये कम्बसन की सपोर्टर नहीं है। अब कौन कैसे ये नॉन सपोर्ट करती है, तो फर्स्ट यहाँ पे है, सिंस इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन इट कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो ये जो होती है वो ऑक्सीजन से काफ़ी हैवी होती है। तो जैसे ये सरफेस है, इस पे यहाँ पे फायर है, तो जैसे इसको यहाँ पे रिलीज़ करते हैं ये इस पूरे सरफेस को कवर कर लेती है। ठीक है, जैसे एक ब्लैंकेट कवर करता है इस सरफेस को। ओके, अब क्या होगा, अब जैसे ये इसको कवर कर लेता है तो यहाँ से इस सरफेस से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच जब कांटेक्ट नहीं होगा तो क्योंकि ऑक्सीजन एक नेसेसरी कंडीशन है बर्निंग के लिए, ये बर्निंग स्टॉप हो जाती है। सेकेंड है, इन सिलेंडर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज kept in liquid form under pressure. When released, it expands enormously and cools down. This brings down the temperature of fuel which help in controlling the fire. तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स में हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे इनको रिलीज़ करते हैं ये बहुत फास्ट तेज़ी से क्या होती है, एक्सपैंड होती है। और जब एक्सपेंशन इसका होता है तो ये बहुत तेज़ी से कूल होती है, मतलब ये इसका टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे ये जिस सरफेस पे इंसिडेंट होती है उसका टेम्परेचर भी ये डाउन कर देती है। ठीक है, जिससे कि फ्यूल जो होता है वो लेस टेम्परेचर पे आ जाता है और जिससे बर्निंग स्लो हो जाती है। अब यहाँ देखिए 9th क्वेश्चन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी ये आंसर आपका इग्निशन टेम्परेचर पे बेस्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैचेज फायर इजीली, हाउएवर ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर इन देम देयरफॉर दे कैचेज फायर इजीली। यहाँ पे मॉइस्चर से मतलब है कि
अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जिससे जो लीव्स है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगी और वो बर्न नहीं करेगा। जबकि ड्राई लीव्स में क्या होगा, वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, जिससे वो बहुत ही जल्दी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से जोन का गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड स्मिथ यूजेज आउटर मोस्ट पार्ट जोन ऑफ फ्लेम to melt gold and silver. This is because the outermost zone of flame undergoes complete combustion and it is the hottest part of the flame. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट जोन होती है वो हॉटेस्ट जोन होती है। हॉटेस्ट मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर पे होती है क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कम्बसन होता है और क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पे है तो वहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर है उसको हाई अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जिससे वो इजीली क्या होता है वो बर्न करता है। तो इजीली मेल्ट होने क्योंकि हीट उसको मिलेगी तो वो मेल्ट करेगा। अगर उसको किसी और जोन में रखेंगे तो वहाँ पे हीट का अमाउंट जो होता है कम होता है जिससे कि वहाँ पे वो मेल्ट नहीं करेगा या फिर काफ़ी टाइम उसको लगेगा मेल्ट करने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। द हीट प्रोड्यूस्ड वॉज मेजर्ड 180000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 kg ऑफ फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न करने पे इतनी हीट एनर्जी मिली है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू पर केजी फ्यूल से जो हीट रिलीज होती है उससे निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 kg फ्यूल यूज़ किया गया है। अब आपको पता करना होगा कि इस फ्यूल का 1 kg अगर बर्न करे तो कितना हीट एनर्जी मिलेगी, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। So calorific value of fuel is the amount of heat produced by the complete combustion of 1 kg of fuel। ठीक है, तो 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कम्बसन से कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसी को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाई 4.5 kg इज़ दिस मच। सो देयरफॉर बाई 1 kg यू कैन डिवाइड दिस क्वांटिटी बाई 4.5। ओके, सो आफ्टर डिवीज़न यू विल गेट 40,000 किलो जूल पर केजी। तो अगर 1 kg फ्यूल को बर्न करने से आपको मिलेगी 40,000 किलो जूल पर केजी, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हो गई 40,000 किलो जूल पर केजी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। ये 4.5 kg से है, अगर आप इसको 1 kg से कैलकुलेट कर दें तो आपको आंसर मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कंट्रोल्ड बी कॉल्ड कंबसन डिस्कस। यहाँ पे बोला जा रहा है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन डिस्कस। तो इस यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। सोल्यूशन, यस, रस्टिंग अ काइंड ऑफ स्लो कंबसन प्रोसेस बिकॉज हेयर आयरन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन जनरेटिंग हीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग में जो आयरन होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जनरेटिंग हीट जनरेट करता है। इस तरीके से ये जो रस्टिंग है इसको भी हम लोग कंबसन कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लेते हैं। यहाँ पे अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन बीकर। Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in outermost part of the flame. Whose water will get heated in shorter time? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अबीदा और रमेश दोनों वाटर को हीट कर रहे हैं। अबीदा ने कहाँ पे रखा हुआ है,
येलो पार्ट में, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर जोन जो है, जबकि रमेश ने उसको आउटर मोस्ट पार्ट जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है वहाँ पे रखा हुआ है। तो आप इजीली यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, जिसको ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ वाटर इजीली मतलब जल्दी बॉयल होगा है, और इसका मतलब वहाँ टाइम कम लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं द वाटर इन द रमेश बीकर विल हीट अप इन शॉर्टर टाइम। शॉर्टर टाइम मीन्स जल्दी, क्विक। दिस इज़ बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज़ हॉटेस्ट। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट जोन जो है वो हॉटेस्ट है, इसलिए वो उसको जल्दी हीट मिल जाएगी और जल्दी वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। वाइल येलो जोन इन विच अबीदा हैड केप्ट द बीकर इज़ लेस हॉट, क्योंकि वो लेस हॉट है इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, so student, I hope you understand these questions, and try to pause the video and note down the answers which are shown on your screen, and try to complete the revision of this chapter and exercise of this chapter. Thank you for watching.